So, hi Suman. First of all, I would like you to this beautiful. I would like to welcome to this beautiful platform, Margdarshan, and especially in Abhiyan batch. So, Suman, please tell me something about yourself. Okay, sir. Thank you me for giving this opportunity to introduce myself, sir. My name is Suman. I belong to Haryana. I have done my basic schooling from native place. After that, I pursued BTech in mechanical engineering from YMCA University of Science and Technology, Faridabad. And my final year project was footstep power generation from rack and pinion arrangement, sir. And sir, currently I am serving to Indian Army as a material assistant in Army Ordnance Corps, COT Department, Madhya Pradesh, Jabalpur unit, sir. That's all about me. So, as you're already serving to Indian Army, so why do you want to join Oil India Limited? Sir, currently I am as a material assistant. That is a supervisory kind of job, sir. And Oil India providing me as a officer rank job, which has more career perspective and growth, sir. So I want to switch, sir. You want to switch. So, okay, fine. So, what is the main purpose you are doing as a material assistant? What Yes, is sir. the job role you are working on? Sir, material assistant. So, what is that? Sir, in this, I am in charge of artillery department, in which different kind of guns repaired and maintained, and the same guns are sent to the LAC and LOC part of the country, sir. And other one service is a due care and lot of diligence required because it's a case of national security and operational capability of the fighting forces, sir. So, don't you think serving in Indian Army would give you the reputed job rather than serving to Oil India Limited? What do you think about that? Sir, as a part of Indian Army is a honor for me, sir, really. But sir, uh, everyone wants to career growth. So as a career growth perspective, and join Oil India is a passion for me from starting, sir. After graduation, I have passion for the public sector. But in between, I got this opportunity, so I continued for the financial stability, sir. ओके, तो अभी आपको पता होगा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले मुझे ये बताइए ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्टेटस क्या चेंज हुआ है अभी रिसेंटली? Sir, in August 2023, from Navratna to Maharatna, sir. अब नवरत्न और महारत्न के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या जानते हो? सर फर्स्ट नवरत्ना पब्लिक सेक्टर सर इन्वेस्टमेंट का है सर कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जो नवरत्ना पब्लिक सेक्टर है वो 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकता है सर। और जो महारत्ना पब्लिक सेक्टर है वो 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकता है सर। फाइव अदर वन थाउजेंड सर, या 5,000 करोड़ का? हाँ सर 5,000 करोड़, सॉरी सर। एंड अदर वन सर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सर इंक्रीज हो जाती है एज ए महारत्ना स्टेटस गेन करने के बाद। Okay, so you're talking about the career growth, right? So suppose you have joined Oil India Limited, right? Okay, so where do you see yourself in the upcoming next 5 years after joining Oil India Limited? Sir, as of now, I don't know what are the hierarchy of the Oil India Limited, but after 5 years, I see myself as a more responsible position and at the higher position where I am handling big projects. Okay, fine. So what are your strength and weakness? Sir, my strength is what I do. I do with positive attitude, and that creates a positive motivational environment around me, sir. And I am a resilient person, sir. When I facing the failure, I don't give up easily, and I come back with the same energy again, sir. And weakness is, sir, I am rechecking the things, sir. I am again check things again and again, 2 to 3 times when I completed my work. I really check 2 to 3 times. That's be a time consuming, sir. So I think this is a weakness for me. Okay, fine. So आपने अभी resilient term का use किया. What is that resilient term means? Resilient means, sir,
bounce back, not permanently deformed, sir. If any shock is coming, not permanently deformed, but regain the same status again. ओके, ग्रेट। ओके, तो आप आपने अभी जैसे अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताया, यू आर पॉजिटिवली पॉजिटिव, आप मोटिवेशन आपको करते हैं, तो एक आध एग्जांपल बताइए, आप आपके लाइफ में कभी घटित हुआ होगा, वो एग्जांपल थोड़ा बताइए आप। पॉजिटिव एटीट्यूड, sir. यस। Sir, I am 2019 pass out from mechanical engineering and continuously prepared for the public sectors and GATE exam and facing failure again and again. But sir, I never give up. But with a positive attitude, I prepared and again this position. Okay, so since 2019, what were you doing? Since Yes, sir. 2019, it's almost 5 years gap, right? So what were Yes. you doing in this 5 year? What were you doing in this 5 year? Sir, I am preparing for the exam and loads of ups and downs came in my life and I learned from them, sir, and achieved this position. Okay, great. So अभी जैसे कि आपका ये 5 साल का जो गैप था, है ना, इस 5 साल के गैप में आपको कहीं से कोई जॉब ऑफर नहीं आया? No, sir, I cleared many exams, but I don't get the final selection. Why? Yes, sir, official. Why your final selection was not happening? Why you were not getting into Maybe selected? there is Why were you sorry, sir. not getting selected? Yes. Tell me, why were you not getting selected? There must be some drawbacks, right? Okay, so before now, up till now, how many interviews you have faced? The four interview. 4. What were which were they? The Rashtriya Chemical Fertilizers Limited and HPCL 2 time and ISR also. 2 times HPCL and ISRO also. Yes, sir. ISRO you have faced or ISRO you will be giving? No, sir, page. So you have faced already ISRO interview. Okay. Okay. Great. ठीक है, तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपने 4 PSU का आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है ना, अभी आपका ये 5वीं बार आपका इंटरव्यू है, ठीक? तो आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक यू कैन, इफ सपोज ऑयल इंडिया लिमिटेड से बेटर ऑफर आपको आ जाता है, फॉर एग्जांपल IOCL से आपको ऑफर आ जाता है, ओके, Yes. तो आप लिव कर देंगे फिर ऑयल इंडिया को? इसके ऊपर आपका क्या प्रकाश है? Sir, currently I have this offer only from Oil India Limited, and sir, in future, if I am selected in this Oil India Limited, I am stick to this only, sir. अच्छा, you will be stick to this only, you will be stuck to this only, right? You will be stuck to Oil India Limited, right? Yes, sir. Okay. So what do you know about Oil India Limited? Like what are the refineries and what do you know? Yes, sir. Sir, Oil India is the second largest crude oil company in exploration and production of crude oil, and recently got the Maharatna status. And Oil India is not limited in Pan India, but also have its global reach in 7 countries, sir. Gabon, Mozambique, Libya, Bangladesh, and Russia, sir. And other ones are in last 2 years continuously growing, and from BPCL completely acquired NRL refinery, sir. And sir, in present year, Oil India Limited get a capita of 45% margin, sir. Okay. पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म पर कैपिटा? 45% टर्म आपने पर कैपिटा तो बोल दिया, क्या होता है पर कैपिटा? Sorry, sir, I don't have idea. I learn about this. ओके, फाइन।
ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये आईओसीएल से कैसे डिफरेंट है, जैसे कि इनका वर्किंग क्या होता है, अगर आपने आपको कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो वर्किंग क्या होता है इनका। Sir, in Oil India Limited, I think there is a diversified work profile. There may be different department, but I don't know, sir. Internally, यू आर नॉट अवेयर, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल। products of oil, sir. Diesel, sir. Petrol. प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड आई एम आस्किंग, Yes, sir. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। Oil India Limited. Sir, Oil India is upstream company dealing with the crude oil, sir. And recently also have a project in city gas distribution. अच्छा, तो ये बेसिकली डाउन स्ट्रीम में काम करते हैं, अपस्ट्रीम में काम नहीं करते हैं, है ना। इनका क्रूड के ऊपर में काम होता है, राइट। ओके, तो थोड़ा बताइएगा आपके घर में ऑयल, फॉर एग्जांपल एक आध ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है आपके घर में या नहीं है। सर, ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट वैसे तो नहीं है, जैसे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है सर, बट क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है ऑयल इंडिया डिफरेंट रिफाइनरी को, हम्म, उसके थ्रू है। बिल्कुल फाइन। तो एलपीजी तो होगा आपके घर में, यस सर। राइट। क्या होता है एलपीजी। सर, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सर। और अभी आपने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर एग्जांपल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, तो इसका जो मेजर सोर्स है ये गेल प्रोवाइड वो करता आपकी यस। है। जो भी पूरे इंडिया में होता है तो इसको प्रोवाइड करती है गेल, राइट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस तो सर। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब यस कैसे सर। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, फाइन। तो हम लोग यहीं तक के आपका इंटरव्यू रखते हैं, राइट। तो बताइए क्या लर्निंग सीखी आपने आज। आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, चार इंटरव्यू आपने ऑलरेडी फेस किया है, क्या सीखा आपने आज। सर, आई थिंक देयर इज a lack of confidence in me, and that I need to boost also. और Oh, sir, I don't know. You know better, sir. दैट तो आई नो, बट आई वांट दैट यू मस्ट रियलाइज सेल्फ, राइट। बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू दैट आई विल बी गाइडिंग यू, दैट तो आई विल 100% आई विल बी टेलिंग यू, डोंट वरी। आई हैव रिटन एवरीथिंग। तो बताइए आप और क्या सीखा आपने आज, मतलब और क्या मिस्टेक्स करी आपने इंटरव्यू में। और सर, आंसर और ज्यादा एलेबोरेट हो सकता है कुछ। एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं थी, उसके अलावा बताइए, आंसर सही थे, बताइए। अपने कॉन्फिडेंस की बात बोली, तो कॉन्फिडेंस तो आपके चेहरे से मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है उसमें, ओके। यू आर फाइन, राइट। आपको ऐसा यस। कोई फियरनेस नहीं था या फिर कोई नर्वसनेस नहीं था, यू आर फेयरफुल, राइट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। अब अंदर से अगर आपको डर लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो डर को ओवरकम किया, आपके चेहरे पे वो आने नहीं दिया, ओके। दैट इज गुड थिंग, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज कि जब आपसे मैंने पूछा कि आप अगले 5 साल, आपके जो आंसर्स थे ना, आंसर प्रिसाइज आंसर नहीं थे, ठीक। आपके ओके। आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके आंसर्स में थोड़ा और क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट अपकमिंग 5 years, तो आपने कहा कि मैं ग्रोथ देखती हूँ करके, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रोथ है। तो वहां पे आपका थोड़ा और क्लैरिटी होना चाहिए था आंसर्स का, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जब आपसे मैंने पूछा कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या, आपने वो तो बता दिया, बट आपको जब एग्जाम्पल की बात करी आप एग्जाम्पल में स्टक कर गए, ओके। ये होना नहीं चाहिए, ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद इनिशियली स्टार्टिंग में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, योर इंट्रोडक्शन वाज नॉट, आई फेल्ट कि थोड़ा सा इसमें लैग है करके। मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ओके। दूसरी चीज, जब मैंने आपसे पूछा कि व्हाई डिड यू गेट, आप रिजेक्ट क्यों हुए, क्या था आपका कारणवश, 4 पीएसयू
में रिजेक्ट होने का क्या कारण था, तो आपने बताया नहीं वो चीज। आपने बताना चाहिए था कि मतलब देखो ये बहुत बड़ी चीज है कि 4 PSU में आप रिजेक्ट हो रहे हो। ओके। यस सर। और 2 बार एचपीसीएल में तो आई एश्योर कि आप जीटी में ही बाहर हो गए होंगे, अश्योर्ड। नहीं सर, ठीक है। पीडी में नहीं है। अच्छा, जीटी में नहीं हुए थे। फाइनल। मेडिकल दिया आपने, मेडिकल हुआ था? यस सर। मेडिकल हुआ था? हाँ जी सर। अच्छा एक में मेडिकल हुआ था, एक में इस टाइम नहीं हुआ था सर, प्रीवियस में हुआ था। इस टाइम मेडिकल नहीं हुआ, इस टाइम पीआई निकला है। अच्छा। पीआई में बाहर हो गई। ओके, तो अभी फिर से भर दीजिएगा, अभी तो 93 सीट्स है, ज्यादा सीट्स है। यस सर। ओके। वैसे एचपीसीएल से बेटर ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का सैलरी ज्यादा है। ठीक है। एचपीसीएल से कभी भी अगर, बता देता हूँ एक चीज, अगर कभी भी कंपैरिजन की बात आई, फॉर एग्जांपल आईओसीएल को कंपेयर जैसे मैंने किया, आईओसीएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड को बोला, या फिर गेल के बारे में मैंने बातचीत करी। ओके। कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में बुराई नहीं करना। ओके। ओके सर। उनके बारे में, दोनों के बारे में अच्छा ही बोलना है। ओके। उसके बाद जब आपसे मैंने पूछा कि मान लीजिए कोई एक एक क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा ही जाएगा कि ये 5 साल, जो मैंने पूछा आपसे कि व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डिड इन बेसिकली दिस 5 years, राइट? ये ईयर गैप को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ओके। आप ये नहीं कह सकते मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे को 5 साल प्रिपरेशन करने को लगे। ठीक है। ये नहीं कह सकते हो आप इसको जस्टिफाई करिए कि इस 5 साल में मेरे को ऑफर्स आए, आई टॉट समवेयर, मैंने पढ़ाया या फिर कुछ किया, है ना? 2000, ये इसको जस्टिफाई करिए कि मैंने कहीं जॉब करी है करके। ठीक। ओके सर। क्योंकि ये 5 साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप जब बायोडेटा फॉर्म फिल करेंगे, बायोडेटा में आपको दिखता है कि वहाँ पे यू आर पास आउट इन 2019 एंड यू आर फेसिंग द इंटरव्यू स्टिल इन 2024। यस सर। ओके। सो इसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके। ओके। बाकी इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं भेज देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना सुधारिए। और एचआर में क्लैरिफिकेशन और चाहिए आंसर्स की, जितने भी आपने बताए, है ना? यस सर। थोड़ा और क्लैरिफाई हो सकता है आंसर। ठीक। ओके सर। श्योर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।